students, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, today I will start chapter 5 of your Introducing Sociology book. This is the NCERT book for class 11th. And today we will read chapter 5, Doing Sociology, Research Methods. Let's start. Introduction. Have you ever wondered why a subject like sociology is called a social science? More than any other discipline, sociology deals with things that are already familiar to most people. All of us live in society and we already know a lot about the subject matter of sociology, social groups, institutions, norms, relationships, and so on, through our own experience. It seems fair then to ask what makes the sociologist different from other members of society. Why should he or she be called a social scientist? हम सभी सोसाइटी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है और हम अपने एक्सपीरियंस से सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और सोसाइटी का जो भी नॉर्म्स होते हैं, कल्चर होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। सोशल ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं और भी सारी चीज़ें जो हैं वो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर जो हैं उनके द्वारा हम सोसाइटी के हिस्सा बन कर के सोसाइटी के लिए अपना जो योगदान जो भी बनता है उसको देते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी सोसाइटी के मेंबर ही होते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से सोचते हैं, क्या उनकी जो टेक्निक्स होती हैं, क्या उनकी विचारधाराएं होती हैं, जिसकी वजह से वो सोशल साइंटिस्ट कहलाते हैं। एज विथ ऑल साइंटिफिक डिसिप्लिन्स द क्रूशियल एलिमेंट here is method or the procedures through which knowledge is gathered. For in the final analysis, sociologists can claim to be different from laypersons not because of how much they know or what they know, but because of how they acquire their knowledge. This is one reason for the special importance of method in sociology. As you have seen in the previous chapters, sociology is deeply interested in the lived experience of people. For example, when studying social phenomena like friendship or religion or bargaining in markets, the sociologist wants to know not only what is observable by the bystander, but also the opinions and feelings of the people involved. Sociologists try to adopt the point of view of people they study, to see the world through their eyes. What does friendship mean to people in different cultures? What does a religious person think he or she is doing when performing a particular ritual? How do shopkeeper and customer interpret each other's words and gestures while bargaining for a better price? The answers to such questions are clearly part of the lived experience of actors involved, and they are of great interest to sociology. This need to understand both the outsider and the insider's point of view is another reason why method is particularly important in sociology. तो चिल्ड्रन जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो एक्चुअली में जो पद्धतियाँ होती हैं, जो प्रोसेसेस होती हैं, उनके आधार पर वो काम करते हैं। वो उन्हें सोशल साइंटिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ये नहीं देखते कि कितना वो जानते हैं और क्या वो जानते हैं, बल्कि वो को अपने नॉलेज को किस प्रकार से जो है गेन कर रहे हैं, किस प्रोसेस के द्वारा वो अपने नॉलेज को बढ़ा करके उसे उपयोग कर रहे हैं। इसलिए सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी में जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो मेथड्स होती हैं उनके द्वारा वो समाज का अध्ययन करते हैं और इसीलिए उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है।
जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा था, हम जो आम लोग होते हैं जो सिंपल एक्सपीरियंस करते हैं लोग, जैसे आप देखते होंगे मार्केट में या फिर कहीं पर भी आपने देखा होगा कि लोग जो है बार्गेनिंग कर रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम नॉर्मल तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसके पीछे छिपी भावनाओं को भी ऑब्जर्व करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी क्या रिलीजियस थिंकिंग है, क्या भावनाएं हैं, या फिर बार्गेनिंग कर रहे हैं तो उनकी आपस में क्या भावनाएं हैं, या फिर कोई शॉपकीपर है अपनी चीज़ को बेच रहा है तो वो किस प्रकार से लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है और उसके पीछे वो कितना वो कन्विंस कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो सोशियोलॉजिस्ट करते हैं और इसीलिए उन्हें सोशल साइंटिस्ट बोला जाता है। आज हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सम मेथडोलॉजिकल इश्यूज, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को डीपली रीड कर लें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उन्हें अंडरलाइन करके उनके मीनिंग निकाल लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर के बारे में समझने का प्रयास करें। मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपके डाउट्स जो हैं क्लियर होते जाएंगे और यदि कहीं डाउट होगा तो आप डाउट क्लास में उसे क्लियर करेंगे। ओके।